Welcome to the today's lecture. Yesterday we discussed kinetic energy, expression of kinetic energy. We also discussed the potential energy. Today we will discuss different types of potential energies and we will try to derive the expressions for them. Some different types of potential energies are gravitational potential energy, elastic potential energy, electrostatic potential energy. First, let us discuss gravitational potential energy. Gravitational potential energy. Gravitational potential energy. Let us first discuss this and we will derive the expression for it also. Suppose we have a body which is lying on the surface of earth. Suppose we want to take this body to a certain height above the surface of earth. हमारे पास एक body है that lies on the surface of earth. Say this is surface of earth. हम क्या काम करेंगे? हम चाहेंगे कि इस body को हम earth के surface से कुछ height पे लेंगे. When we take this body from the surface of earth to a certain height above the surface of earth, हमें ग्रेविटेशनल फोर्स के खिलाफ काम करना है. क्योंकि जैसे ही हम बॉडी को ऊपर लेंगे इस पे क्या एक्ट होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स जो इस बॉडी को ऊपर जाने नहीं देगा. नाउ इन ऑर्डर टू रेज दिस बॉडी above the surface of earth, we have to perform the work against the gravitational force of earth. This work done against what? Gravitational force in order to raise the body to a certain height above the surface of earth, that is called as gravitational potential energy. एक बॉडी हमारे पास है वो अर्थ के सरफेस पे है, हमें इस बॉडी को अर्थ के सरफेस से ऊपर लेना है. जब हम इस बॉडी को अर्थ के सरफेस से ऊपर लेंगे ग्रेविटी कहां इसको लेगी? नीचे. तो हमें ऊपर लेने के लिए ग्रेविटी के खिलाफ क्या करना है? काम. तो वो काम जो हम ग्रेविटी के खिलाफ करेंगे इन ऑर्डर टू टेक दिस बॉडी टू अ सर्टेन हाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, वो काम जो है वो इस बॉडी में स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. इसका मतलब है जब मैं इस बॉडी को किसी हाइट पे लूंगा इस बॉडी में एक किस्म की एनर्जी स्टोर हो जाएगी. उस एनर्जी को हम क्या कहेंगे? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. हम ऐसे बोलेंगे द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी, द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी above the surface of earth, the energy possessed by a body above the surface of earth, that is called as what? Gravitational potential energy. इसको हम कैसे मेजर करेंगे? हम मेजर करेंगे वर्क डन against the gravitational force in order to raise the body above the surface of earth. So what is gravitational potential energy? It is energy possessed by a body by virtue of its position, by virtue of its position, by virtue of its position above the surface of earth, above the surface of earth. Energy possessed by a body by virtue of its position above the surface of earth, उसी एनर्जी को हम क्या कहेंगे? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. क्योंकि above the surface of earth लेने के लिए हमें ग्रेविटेशनल फोर्स के खिलाफ काम करना है. जो हम काम करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स के खिलाफ वही काम इस बॉडी में स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज व्हाट? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है ना? ये हम कैसे मेजर करेंगे? मेजर्ड एज the amount of work done, measured as the amount of work done against the gravity, in raising a body to a certain height above the surface of earth, to a certain height above the surface of earth.
ये हम मेजर कैसे करते हैं? हमें मेजर करना है वर्क डन किसके खिलाफ? ग्रेविटेशनल फोर्स के खिलाफ, इन ऑर्डर टू रेज द बॉडी टू अ सर्टेन हाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। इसका मतलब है जैसे ही जब भी आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन निकालना होगा, आपको क्या निकालना है? वर्क डन अगेंस्ट व्हाट फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। वही वर्क डन जो आप निकालेंगे वही इस बॉडी में स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज व्हाट? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। नाउ लेट अस डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर दिस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब हम डिराइव करेंगे एक्सप्रेशन फॉर दिस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। देखो बच्चों, हाउ वी विल डिड्यूस इट्स एक्सप्रेशन। सपोज this is the surface of earth. What is this? Surface of earth. This is the ground. इस ग्राउंड पे मेरे पास एक बॉडी है। सपोज इस बॉडी की मास m है। m क्या लिया आपने? मास ऑफ ए बॉडी lying on the surface of earth. हमने एक बॉडी ले ली जिसका मास m लिया हमने इस बॉडी को रखा ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। नाउ ये बॉडी जो है ये अर्थ के सरफेस पे एक किस्म का फोर्स एक्सर्ट करेगी, एंड दैट फोर्स विल बी इक्वल टू वेट ऑफ बॉडी एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स। वो वेट ऑफ बॉडी होता है बराबर, जैसे F होता है बराबर ma, तो फोर्स के बदले क्या है? वेट। A के बदले क्या है? G। What is G? Acceleration due to gravity। मैंने एक बॉडी ले ली जिसका मास मैंने m लिया, इसको मैंने रखा कहां पर? अर्थ के सरफेस पे। ये बॉडी अर्थ के सरफेस पे एक फोर्स एक्सर्ट करेगी, वो फोर्स होगा बराबर वेट ऑफ बॉडी। तो वेट ऑफ बॉडी कहां एक्ट होता है? वर्टिकली डाउनवर्ड्स, एंड दैट वेट ऑफ बॉडी विल बी इक्वल टू mg। What is m? M is the mass of the body, and g is what? Acceleration due to gravity। मैंने एक बॉडी ले ली जिसका मास m लिया, इस बॉडी को मैंने रखा on the surface of the earth। ठीक है ना? What is g? g is acceleration due to gravity on the surface of earth। W is equal to mg। ये क्या है? वेट ऑफ बॉडी। वेट ऑफ बॉडी एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स, एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स। नाउ मुझे इस बॉडी को अर्थ के सरफेस से ऊपर लेना है, to a certain height above the surface of earth. Suppose I will raise this body to a height h above the surface of earth. यहां से यहां तक जो height है, that height is h। What is h? Height through which the body is raised above the surface of earth. H is equal to height through which the body is raised above the surface of earth, above the surface of earth। यहां नजर रखो बेटा, h है height through which the body is raised above the surface of earth। यहां देखो बेटा, इस बॉडी को हाइट h तक लेने के लिए मुझे ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए या ग्रेविटी के खिलाफ क्या करना है? काम। जो मैं फोर्स लगाऊंगा इस बॉडी को सरफेस ऑफ अर्थ से कहां तक लेने के लिए? तो हाइट h। सपोज इस पॉइंट को हम a रखेंगे नाम, इस पॉइंट को b रखेंगे नाम। इस a पॉइंट जो है वो कहां पर है? सरफेस ऑफ अर्थ। b पॉइंट कितना दूर है a से? h। इस बॉडी को सरफेस ऑफ अर्थ से पॉइंट बी तक
जो कि अर्थ के सरफेस पे कितनी हाइट पे है, h हाइट पे है, लेने के लिए मुझे एक फोर्स लगाना है, एंड दैट फोर्स मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट टू द वेट ऑफ द बॉडी। यहां देखो वेट ऑफ बॉडी कहां है, डाउनवर्ड्स। अब ये बॉडी को कहां लेती है, वेट कहां लेता है, डाउनवर्ड्स। मुझे इसको कहां लेना है, ऊपर। मुझे कम से कम एक फोर्स लगाना है विच मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट। इक्वल एंड अपोजिट मींस इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। किसके बराबर होना चाहिए, वेट ऑफ बॉडी। हम लिखेंगे लेट F इज इक्वल टू फोर्स applied on a body in order to raise it to a height h, in order to raise it to a height h above the surface of earth, in order to raise it to a height h above the surface of earth। यहां देखो बेटा, यहां देखो, इस बॉडी को अर्थ के सरफेस से कितनी हाइट पर लेने के लिए, हाइट h तक लेने के लिए मुझे कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ा, F। ये F जो है ये कम से कम किसके बराबर होना चाहिए, वेट ऑफ बॉडी। क्योंकि वेट ऑफ बॉडी कहां पर है, डाउनवर्ड्स। ये डाउनवर्ड फोर्स। ये बॉडी तब ऊपर जाएगी जब ये फोर्स कम से कम किसके बराबर होगा, वेट ऑफ बॉडी। In order to raise the body to a height h above the surface of the earth, this force must be equal and opposite to weight of the body. It means this force must be equal in magnitude but opposite in direction to the weight of body. We write, therefore F will be equal to mg. F किसके बराबर है, mg के बराबर। अब मुझे काम निकालना है जो यही फोर्स करेगा किसके खिलाफ, ग्रेविटी के खिलाफ। ग्रेविटी के खिलाफ, in order to take this body from point A to point B। हम लिखेंगे W is equal to work done by the force F on the body, work done by the force F on the body। W is equal to work done by the force F on the body। बच्चों देखो यहां पर आपको पता है W होता है बराबर F डॉट S। यहां S के बदले क्या है, H। तो यहां होगा ना ये F डॉट H। यहां देखो प्लीज, ये होगा बराबर फिर F H cos थीटा, होगा ना, होगा ना। नाउ सिंस ये F जो है, दिस F एंड H दे आर इन द सेम डायरेक्शन, इनके दरमियान एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। F एंड H ये क्या है, इन द सेम डायरेक्शन, इनके दरमियान एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। हम लिखेंगे फिर W इज इक्वल टू F H cos 0 डिग्री। Why? Because F and H are in the same direction। ये होगा W इज इक्वल टू F H। F का वैल्यू क्या है, mg। पुट वैल्यू ऑफ F, ये क्या बनेगा, W इज इक्वल टू F के बदले क्या लिखूंगा मैं, mg, साथ क्या आएगा, H। ये क्या निकाला मैंने, वर्क डन against the gravitational force in raising a body to a certain height above the surface of earth। मैंने बोला डेफिनेशन में, यही वर्क जो होगा, यही वर्क जो होगा, ये यहां पर इस बॉडी में स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। बट W is equal to U। What is U? Gravitational potential energy। But W is equal to U। What's U? Gravitational potential energy। Therefore U is equal to, W के बदले में लिखूंगा U is equal to mgh। This is the expression for gravitational potential energy of a body। U is equal to mgh। एक नजर फिर से कैसे किया आपने, आपने एक बॉडी ले ली जिसका मास क्या है, m। इसको कहां पर रखा आपने, अर्थ के सरफेस में, ठीक है। नाउ दिस बॉडी विल एक्सर्ट a force on the earth equal to its weight। वो किसके बराबर है, mg। now h जो है, h is the height through which you want to raise this body from the surface of earth from point A to B। ये through height h लेने के लिए हमें फोर्स की जरूरत है। F जो है वो आपने फोर्स अप्लाई किया in order to raise the body through height
H above the surface of earth। मगर ये फोर्स जो होगा ये कम से कम किसके बराबर होना चाहिए? mg के बराबर, ठीक है ना। तो F किसके बराबर है? mg के बराबर। नाउ W लिया, वर्क डन, जो ये फोर्स करेगा अगेंस्ट द, जो ये फोर्स करेगा बॉडी पे, इन ऑर्डर टू टेक दिस बॉडी फ्रॉम अर्थ सरफेस टू अ हाइट h। चूंकि F और H जो है दे आर इन द सेम डायरेक्शन, therefore W जो होगा दिस विल बी FH cos 0। तो W जो होगा दिस विल बी FH। F किसके बराबर है? mg के बराबर। W किसके बराबर है? W किसके बराबर निकला? mgh। मगर ये वर्क जो है ये इस बॉडी में स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। व्हाट इज दैट एनर्जी कॉल्ड एज? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। लिहाजा W होगा U के बराबर। व्हाट्स U? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। therefore U is equal to mgh। This is the expression for gravitational potential energy. It shows that gravitational potential energy depends upon mass of body, gravitational potential acceleration due to gravity, and height above the surface of earth। जितना आप अर्थ के सरफेस से ज्यादा हाइट पे बॉडी पे लोगे उतना उस बॉडी में ज्यादा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा। जितना आप अर्थ के सरफेस से ऊपर लोगे बॉडी को ज्यादा, उतना उसमें ज्यादा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है दैट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइट। अगर हम अर्थ के सरफेस पे जाएंगे, अर्थ के सरफेस पे जो ये h है ये किसके बराबर है? 0। वेरी गुड। अरे भाई अर्थ के सरफेस पे यहां पर h का क्या वैल्यू होगा? शाबाश। यहां पर h का क्या वैल्यू होगा? 0। एट द सरफेस ऑफ अर्थ, at the surface of earth h is equal to 0। जरा अर्थ के सरफेस पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगी? यह होगी mg into 0। वो किसके बराबर होगी? तो अर्थ के सरफेस पे बॉडी की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? 0। बॉडी में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तब ही पैदा होगी जब हम बॉडी को अर्थ के सरफेस से ऊपर लेंगे। क्योंकि जैसे हम ऊपर लेंगे हमें काम करना है किसके खिलाफ? ग्रेविटेशनल फोर्स के खिलाफ। वही काम बॉडी में स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज व्हाट? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। देयर इज नो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी प्रेजेंट इन अ बॉडी when the body is present on the surface of the earth, because at the surface of the earth height is 0, so gravitational potential energy is 0। this was about gravitational potential energy। pause कर सकते। Number second type, that is elastic potential energy। यहां देखो, elastic potential energy। इलास्टिक बॉडी क्या होती है पहले मैं थोड़ा सा वो बताऊंगा। अगर मेरे पास एक बॉडी है, मैं इस बॉडी को डिफॉर्म करूंगा, इसकी शक्ल चेंज करूंगा बाय अप्लाइंग ए फोर्स। मेरे पास एक बॉडी है, इस बॉडी की कुछ शक्ल है, कुछ साइज है, मैं इस बॉडी को डिफॉर्म करूंगा। डिफॉर्म मतलब होगा इसका शेप और साइज में चेंज करूंगा बाय अप्लाइंग सर्टेन फोर्स। दैट फोर्स इज कॉल्ड एज डिफॉर्मिंग फोर्स। अगर मैं ये डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव करूंगा, अगर मैं डिफॉर्मिंग फोर्स क्या करूंगा? रिमूव। डिफॉर्मिंग फोर्स वो फोर्स है जिससे मैंने बॉडी की शेप और साइज चेंज किया। अगर मैं डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव करूंगा, अगर ये बॉडी अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, अपनी ओरिजिनल शेप और साइज पे वापस आ गई, देन दैट बॉडी इज कॉल्ड एज इलास्टिक बॉडी। A body which completely regains its shape and size after the removal of what force? Deforming force। उस बॉडी को हम क्या कहते हैं? इलास्टिक बॉडी। एक स्प्रिंग को लेंगे, इसको खींचेंगे, दैट फोर्स, उससे इसकी लेंथ क्या हो जाएगी? इंक्रीज। उस फोर्स को क्या कहेंगे? डिफॉर्मिंग फोर्स। अगर इसको फोर्स को छोड़ देंगे, ये स्प्रिंग क्या आती है अपने आप अपनी जगह पर वापस, तो उस स्प्रिंग जो होती है इसको हम कहेंगे इट्स एन इलास्टिक स्प्रिंग। वो स्प्रिंग, जो स्प्रिंग अपने ओरिजिनल पोजीशन, अपने ओरिजिनल साइज को वापस रिगेन करेगी, अगर इस पे हम डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव करेंगे, उस स्प्रिंग को हम क्या कहेंगे बेटा? इलास्टिक स्प्रिंग। आज हमने पढ़ना है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। देखो बच्चों, सपोज यहां पर हमारे पास एक स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है, अभी देखो आप, ये स्प्रिंग है, ये अनस्ट्रक्चर्ड स्प्रिंग है, इसको मैंने खींचा नहीं है, ये इसकी ओरिजिनल लेंथ है यहां से यहां तक। सपोज इस स्प्रिंग पे मैंने फोर्स लगाया, क्या लगाया? फोर्स।
इससे ये स्प्रिंग जो है ये स्ट्रेच हो गई, ठीक है, ये स्प्रिंग क्या हो गई, स्ट्रेच हो गई। जैसे ही ये स्प्रिंग स्ट्रेच हो जाएगी, आप घर पे भी देखना, जैसे आप स्प्रिंग को खींचते हो ना, स्प्रिंग आपको अपनी तरफ खींचती है। What happens when this spring is stretched, या हम इसको कंप्रेस करेंगे, कंप्रेस करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे, इतनी ज्यादा है तो इसको इसे कंप्रेस करेंगे, ऐसे, ये कंप्रेस किया, कंप्रेस करने से लेंथ कम हो जाएगी, स्ट्रेच करने से लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज। जैसे ही हम एक स्प्रिंग को स्ट्रेच करेंगे, खींचेंगे या कंप्रेस करेंगे, इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी या डिक्रीज हो जाएगी। जैसे ही हम इसको स्ट्रेच करेंगे या कंप्रेस करेंगे, इस स्प्रिंग में एक किस्म का फोर्स पैदा होता है, पैदा होता है खुद, तब पैदा होगा जब हम इसको स्ट्रेच करेंगे। अगर हम इसको स्ट्रेच नहीं करेंगे, इसमें यह फोर्स पैदा नहीं होता है। इसमें एक फोर्स डेवलप होता है, दैट फोर्स इज कॉल्ड रेस्टोरिंग फोर्स। रेस्टोरिंग फोर्स तब ही डेवलप होगा जब हम इस स्प्रिंग को या स्ट्रेच करेंगे या कंप्रेस करेंगे। अगर हम न स्ट्रेच करेंगे न कंप्रेस करेंगे, इसमें रेस्टोरिंग फोर्स नहीं होगा। रेस्टोरिंग फोर्स एग्जिस्ट्स ओनली व्हेन वी अप्लाई द स्ट्रेचिंग फोर्स और कंप्रेसिंग फोर्स। जैसे ही हम इसको खींचेंगे, इस स्प्रिंग को, इस स्प्रिंग में एक रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा, वो इस स्प्रिंग को अपनी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ वापस लेना चाहेगा। When a spring is stretched or compressed, a restoring force develops on the spring, which tries to bring the spring back to its original position, back to its original configuration. इसका मतलब है, अगर मुझे अब इस स्प्रिंग को स्ट्रेच ही करना होगा, मुझे इस रेस्टोरिंग फोर्स के खिलाफ क्या करना है, काम। रेस्टोरिंग फोर्स इस स्प्रिंग को स्ट्रेच नहीं होने देगा, क्योंकि रेस्टोरिंग फोर्स क्या काम करता है, ये बोलता है कि मैं स्प्रिंग को अपनी जगह पे क्या लूंगा, वापस। लेकिन मुझे इस स्प्रिंग को क्या करना है, स्ट्रेच करना है, या मुझे इसको क्या करना है, कंप्रेस करना है। ये रेस्टोरिंग फोर्स होता है अपोजिट टू स्ट्रेचिंग फोर्स और कंप्रेसिंग फोर्स। अब मुझे अगर इस स्प्रिंग को स्ट्रेच ही करना होगा, कंप्रेस ही करना होगा, मुझे फिर इस रेस्टोरिंग फोर्स के खिलाफ क्या करना है, काम। दैट वर्क which we have to perform against the restoring force, against the restoring force in stretching or in compressing an elastic spring, that work is called as what? That work is called as what? Elastic potential energy. The work done against the restoring force in stretching or in what? Or in compressing an elastic spring, that energy is stored in the spring in the form of what? An energy, and that energy is called as what? Elastic potential energy. हम यहां देखिए, इसका मतलब है जब हम इस स्प्रिंग को स्ट्रेच करेंगे, जब हम इस स्प्रिंग को कंप्रेस करेंगे, इस स्प्रिंग में एक किस्म की एनर्जी पैदा होती है। वो एनर्जी जो होती है, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। हम कहेंगे द एनर्जी एसोसिएटेड विद स्टेट ऑफ कंप्रेशन or state of expansion of an elastic spring, that energy is called as what? Elastic potential energy. जब हम स्प्रिंग को कंप्रेस करेंगे या जब हम स्प्रिंग को स्ट्रेच करेंगे, इस स्प्रिंग में एक किस्म की एनर्जी पैदा होगी, that energy is called as what? Elastic potential energy. वो एनर्जी क्यों पैदा होगी, क्योंकि हम काम करते हैं किसके खिलाफ, रेस्टोरिंग फोर्स के खिलाफ। अगर हम वो काम नहीं करेंगे, रेस्टोरिंग फोर्स इस स्प्रिंग को स्ट्रेच होने नहीं देगा। हम लिखेंगे energy associated with the state of expansion, with the state of expansion or compression. Energy associated with the state of expansion or compression of an elastic spring, या सिंपली ऑफ ए स्प्रिंग, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। जो एनर्जी एक स्प्रिंग में होगी, जब वो स्प्रिंग किस स्टेट में होगी, स्टेट ऑफ एक्सपेंशन, जब हमने इसको खींचा होगा, या स्टेट ऑफ कंप्रेशन, उसी एनर्जी को हम क्या कहेंगे बेटा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इसको हम कैसे मेजर करते हैं, मेजर्ड, इट इज मेजर्ड एज या बाय as the amount of work done, as the amount of work done against the
restoring force. It is measured as the amount of work done against the restoring force in stretching or compressing the spring. ये हम कैसे मेजर करते हैं? हम मेजर करेंगे वर्क किसके खिलाफ? रेस्टोरिंग फोर्स के खिलाफ, इन ऑर्डर टू स्ट्रेच और इन ऑर्डर टू कंप्रेस द स्प्रिंग. यही वर्क जो होगा ये स्टोर होगा इस स्प्रिंग में इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी. उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं बेटा? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. देखो बेटा कैसे हम इसको अब एक्सप्रेशन निकालेंगे. एक्सप्रेशन फॉर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. देखो बच्चों कैसे हम इसके लिए एक्सप्रेशन निकालेंगे. देखो बेटा, सपोज हमारे पास एक रिजिड सपोर्ट है, वॉल है हमारे पास. दिस इज रिजिड सपोर्ट. दिस वॉल इज व्हाट? रिजिड सपोर्ट. सपोज हमारे पास एक रिजिड सपोर्ट है. सपोज हमें यहां पर एक स्प्रिंग है. इस स्प्रिंग का एक एंड जो है थोड़ा सा इधर बनाएंगे. दिस इज रिजिड सपोर्ट. प्लीज डोंट टॉक. ये एक स्प्रिंग है. इस स्प्रिंग को मैं नाम रखूंगा OA. प्लीज हियर. एक स्प्रिंग मैंने ले ली OA. OA इज एन इलास्टिक स्प्रिंग हैविंग नेग्लिजिबल मास. नेग्लिजिबल मास जो है इसका मतलब है इसका मास बहुत कम है. मैंने एक इलास्टिक स्प्रिंग ले ली, उसका नाम मैंने क्या रखा? OA. लेट दिस स्प्रिंग हैज नेग्लिजिबल मास. इसका एक एंड जो O है वो मैंने फिक्स किया किसके साथ? रिजिड सपोर्ट के साथ. दिस इज रिजिड सपोर्ट. एक एंड को मैंने स्प्रिंग का जो एक एंड है उसको मैंने अटैच किया. किसको लगाया? उसको एक वॉल को, रिजिड सपोर्ट. जो इस स्प्रिंग का फ्री एंड O है उस पे उसको मैं एक स्फीयर कनेक्ट करूंगा. सपोज उस स्फीयर की मास जो है दैट इज M. लेट OA क्या है? इलास्टिक स्प्रिंग ऑफ नेग्लिजिबल मास, जिसका कुछ मास नहीं है, whose one end is connected to a rigid support and the ball and a sphere of mass M is connected to its other end. Suppose this spring जो है, this spring is placed on a horizontal surface along x axis. Suppose इसको मैंने रखा over horizontal surface along x axis. मैं लिखूंगा OA क्या है? इलास्टिक स्प्रिंग. इलास्टिक स्प्रिंग whose and O elastic spring having negligible mass. Elastic spring having negligible mass, whose and A is connected and O is connected to a rigid support and a sphere of mass M is connected to its end A. Is connected to its end A. मैंने एक स्प्रिंग, इलास्टिक स्प्रिंग OA ले ली, जिसका एंड O मैंने कनेक्ट किया एक वॉल को, और दूसरा एंड जो है A उसको मैंने एक स्फीयर, जिस स्फीयर का मास M है वो कनेक्ट किया. ठीक है? ठीक है. सपोज ये स्प्रिंग जो है, इस स्प्रिंग को मैंने प्लेस किया along a horizontal surface. This is the horizontal surface, smooth horizontal surface along x axis. ये कौन सी एक्सिस है? यहां से x axis. देखो बच्चों, अगर मैं इस स्प्रिंग को ऐसे ही रखूंगा, दिस इज अन, यानी कि वो तरफ, इस स्प्रिंग को मैंने ऐसे ही रखा, अनस्ट्रेच्ड, अनस्ट्रेच्ड. इसको मैंने अभी खींचा नहीं, मत खींचा. इसका मतलब है इस स्प्रिंग की जो लेंथ है वो उतनी ही रहेगी, L. ठीक है? इस वक्त जो ये पोजीशन A जो है, इसको हम तब कहेंगे
इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन या नॉर्मल पोजीशन। जब हम सुप्रीम को स्ट्रेच नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही रखेंगे, then this A is called equilibrium position और normal position of supreme। इस नॉर्मल पोजीशन पे जो सुप्रीम का डिस्प्लेसमेंट x होगा वो क्या होगा? जीरो। यानी लेंथ मैंने इंक्रीज नहीं की, जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा? जीरो। इसी तरह ऐसा ही मैं नीचे भी बनाऊंगा, अभी ठहर वहां बैठ। सी हियर, सपोज मैं इस सुप्रीम को स्ट्रेच करूंगा। क्या करूंगा? स्ट्रेच। कैसे स्ट्रेच करूंगा? जब मैं इस स्फीयर को पुल करूंगा अपनी तरफ। जब मैंने स्ट्रेच को पुल किया यहां अपनी तरफ खींचा, ये जो स्प्रिंग है ये स्ट्रेच हो जाएगी, ये स्ट्रेच हो जाएगी। स्ट्रेच होने से इसकी लेंथ जो है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज। सपोज मैंने ये स्प्रिंग जो है मैंने इसको स्ट्रेच किया, ठीक है ना, थ्रो ए डिस्प्लेसमेंट x। तो यहां पर जो आपका यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा? x। यानी इस पोजीशन पे x किसके बराबर होगा? x। जैसे मैं इसको स्ट्रेच करूंगा, ठीक है ना, बाय अप्लाइंग ए स्ट्रेचिंग फोर्स, इसमें क्या पैदा होगा? रेस्टोरिंग फोर्स। वो रेस्टोरिंग फोर्स इसको अपनी नॉर्मल पोजीशन पे क्या लाएगा? वापस। ठीक है ना। इसी तरह यहां पर मैं क्या काम करूंगा? इस सुप्रीम को मैं कंप्रेस करूंगा। क्या करूंगा? कंप्रेस करूंगा बाय पुशिंग द स्फीयर। स्फीयर को मैं ऐसे धक्का मारूंगा अंदर की तरफ, ये सुप्रीम जो है इट गेट्स कंप्रेस्ड। ठीक है ना, ठीक है ना। कितना कंप्रेस किया मैंने इसको मैंने कंप्रेस किया। यहां पर भी मैंने इसको कंप्रेस किया, ये ओरिजिनल पोजीशन थी। यहां पर मैंने इसको कंप्रेस किया थ्रू ए डिस्टेंस x। तो यहां कंप्रेसिंग फोर्स इस साइड में है, रेस्टोरिंग फोर्स इस साइड में होगा ना। रेस्टोरिंग फोर्स इस साइड होगा ना। रेस्टोरिंग फोर्स जो है वो इस साइड में होगा, क्योंकि मैं कंप्रेसिंग फोर्स कहां लगाता हूं? यहां की तरफ। रेस्टोरिंग फोर्स कहां होगा? रेस्टोरिंग फोर्स इस साइड में होगा। ये इस बॉडी को अपनी पोजीशन पे क्या लाएगा? वापस। हम ऐसे बोलेंगे, when the spring is stretched or compressed, what happens? A restoring force is developed in the spring, which tries to bring the spring back to its original position. ये restoring force है, इसको मैं F रखूंगा नाम। F is the restoring force acting on the spring, F क्या लिया मैंने? F क्या है? Restoring force acting on the spring when it is stretched, or compressed, when it is stretched or compressed. F जो है F है restoring force acting on the spring when it is stretched or compressed through a displacement x. यहां देखो प्लीज मेरी तरफ, थ्रू ए डिस्प्लेसमेंट x। नॉर्मल पोजीशन पे जो x है वो कितना है? 0। यहां देखो, मत देखो, जब मैंने इस सुप्रीम को स्ट्रेच किया थ्रू ए डिस्प्लेसमेंट x, इस सुप्रीम पे क्या डेवलप हुआ? रेस्टोरिंग फोर्स। वो क्या लाएगा इस सुप्रीम को अपनी जगह वापस। देखो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इस साइड में है, इसको मैं यहां खींचता हूं। इन केस ऑफ स्ट्रेचिंग, इन केस ऑफ कंप्रेशन, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इस साइड में है। इसका मतलब है रेस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है ये आपस में क्या है? अपोजिट है ना। देखो अगर मैं इसको स्ट्रेच करूंगा डिस्प्लेसमेंट यहां की तरफ होगा, अगर मैं इसको कंप्रेस करूंगा डिस्प्लेसमेंट इस साइड में होगा। दोनों सूरतों में जो ये रेस्टोरिंग फोर्स है इट इज अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। जितना मैं इस सुप्रीम को ज्यादा स्ट्रेच करूंगा, जितना मैं इस सुप्रीम को ज्यादा कंप्रेस करूंगा, उतना उसमें ज्यादा रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा। इसका मतलब है ये रेस्टोरिंग फोर्स जो होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्प्लेसमेंट। जितना मैं इसको ज्यादा खींचूंगा, जब ज्यादा खींचने से इसमें ज्यादा डिस्प्लेसमेंट बनेगा। इसका मतलब है जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट बनेगा उतना ज्यादा रेस्टोरिंग फोर्स होगा। इसका मतलब है दिस रेस्टोरिंग फोर्स F इट इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट x। ठीक है, और मैं ऐसे लिखूंगा F इज इक्वल टू -kx।
F is equal to minus kx. The restoring force acting on the stretched or compressed spring is directly proportional to the displacement of the spring from the mean position, from the normal position, और F is equal to minus kx. नेगेटिव साइन जो होता है ये दिखाता है ये रेस्टोरिंग फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट जो है दे आर अपोजिट टू ईच अदर. दिस K is constant of proportionality. This K is called spring factor. What is this called as? Spring factor or force constant of spring. Or force constant of spring. This K is constant of proportionality and this K is called as what? What is this K called? This K is called force constant or spring factor of a spring. देखो बच्चों, ये restoring force जो है ये इसको न स्ट्रेच होने देता है न इसको कंप्रेस होने देता है. अब अगर मुझे इस स्प्रिंग को कंप्रेस करना है, अगर मुझे इस स्प्रिंग को कंप्रेस करना है या अगर मुझे इस स्प्रिंग को स्ट्रेच करना है, मुझे एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना है. मुझे यहां पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना है. जो एक्सटर्नल फोर्स यहां इस साइड में और यहां इस साइड में, ये रिस्टोरिंग फोर्स है यहां इस साइड में, क्योंकि कंप्रेस में जब करूंगा इस साइड में फोर्स लगाना है. अब अगर मुझे इस स्प्रिंग को स्ट्रेच करना है, रेस्टोरिंग फोर्स इस साइड में है, मुझे एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना है जो होगा कम से कम इक्वल एंड अपोजिट टू व्हाट? रेस्टोरिंग फोर्स. देखो बच्चों, ये स्प्रिंग है, मैं इसको खींच रहा हूं, रेस्टोरिंग फोर्स क्या ले रहा है? इसको वापस ले रहा है. अब मुझे इसको खींचना ही है, इसका मतलब है मुझे फोर्स अप्लाई करना है. किसके अपोजिट होना चाहिए फोर्स? वो फोर्स कम से कम इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए. किस फोर्स को? हम लिखेंगे F external is equal to external force applied on the spring in order to stretch or compress it. In order to stretch or compress it. Please pause it. In order to compress or stretch it. In order to stretch or compress the spring, we have to apply this external force, and this external force must be at least equal and opposite to what? Restoring force. That means F exterior must be equal to minus F. Negative sign shows that it is opposite to F. Equality shows that it is equal in magnitude to F. What is F? What is F? Minus Kx. Put the value of F. This is F exterior is equal to minus into minus Kx. This is F exterior is equal to Kx. We will call this equation number first. Suppose, now, in order to calculate the work done by this external force, in order to calculate the work done against the restoring force by this external force, what we have to do? We will assume that this spring is further stretched through a displacement dx. चूंकि ये एक्सटर्नल एक जगह रेस्टोरिंग फोर्स ज्यादा होगा, एक जगह रेस्टोरिंग फोर्स कम होगा, सो दिस रेस्टोरिंग फोर्स इज अ वेरिएबल फोर्स. हमें वर्क डन के लिए एक्सप्रेशन है W is equal to F dot S. वो हम तब लगाते हैं जब हम फोर्स कांस्टेंट लेते हैं. अब यहां पर वेरिएबल फोर्स के दिस इन केस ऑफ वेरिएबल फोर्स इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द वर्क डन, हम कहते हैं वहां पर कि हम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लेते हैं. स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हम लेते हैं, उसमें जो फोर्स होता है वो लगभग क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, जैसे परसों पढ़ाया आपको. सो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द वर्क डन अगेंस्ट दिस रेस्टोरिंग फोर्स in stretching or in compressing the spring, let us assume that the spring is further stretched or further compressed through a displacement dx. पहले हम देखेंगे इस स्प्रिंग को स्मॉल डिस्प्लेसमेंट से स्ट्रेच करने के लिए हमें कितना काम करना पड़ेगा. मैं लिखूंगा let dw is equal to small amount of work done by F exterior, by external force in stretching
or compressing the spring, in stretching or compressing the spring through a small displacement dx. Please don't talk. So through a small displacement dx. यहां देखो, ये dw मैंने बोला, वो वर्क किसके खिलाफ मुझे निकालना है? रेस्टोरिंग फोर्स के खिलाफ। कौन सा वर्क? जिससे मैं बॉडी को स्प्रिंग को डिस्प्लेस करूंगा फ्रॉम x इक्वल 0 टू x इज इक्वल टू x, यानी थ्रो डिस्प्लेसमेंट x, यहां से यहां लेने तक जो मुझे काम करना पड़ेगा स्प्रिंग पे, ठीक है ना, रेस्टोरिंग फोर्स पे, वो कैसे मैं निकालूंगा? मैं पहले बोलूंगा जो स्प्रिंग है दैट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू अ स्मॉल डिस्टेंस dx। चूंकि ये डिस्प्लेसमेंट और एक्सटर्नल फोर्स जो है ये एक ही डायरेक्शन में है, तो इनके दरमियान जो एंगल होगा वो क्या होगा? 0 डिग्री। मैं लिखूंगा dw इज इक्वल टू f एक्सटीरियर dx cos 0 डिग्री। चूंकि dx उसी साइड में है, f एक्सटीरियर उसी साइड में है, तो एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। ठीक है, तो इसका मतलब है dw होगा बराबर f एक्सटीरियर इंटू dx। ठीक है, पुट वैल्यू ऑफ f एक्सटीरियर वो किसके बराबर है? kx। तो ये क्या बनेगा? dw इज इक्वल टू kx dx। बस हो गया खत्म अब मैथमेटिक्स है, kx dx। ये किया मैंने, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द स्प्रिंग और इन कंप्रेसिंग द स्प्रिंग थ्रू अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx। मुझे निकालना है टोटल वर्क डन अगेंस्ट व्हाट फोर्स? रेस्टोरिंग फोर्स इन स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिंग द स्प्रिंग फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू x। वो कैसे निकलेगा? जब मैं इस इक्वेशन को क्या करूंगा? इंटीग्रेशन बिटवीन लिमिट्स 0 टू x। ठीक है, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द टोटल वर्क डन अगेंस्ट द रेस्टोरिंग फोर्स in stretching the spring from normal position where x is equal to 0 to this position where x is equal to x. That work done can be obtained by integrating this equation between limits x is equal to 0 to x is equal to x. तो हम सीधे इसको क्या करेंगे? इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग बिटवीन लिमिट्स 0 to x, इंटीग्रेटिंग बिटवीन लिमिट्स 0 to x। करो भाई इंटीग्रेट। ये क्या बनेगा बच्चों? ये बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ dw इज इक्वल टू इंटीग्रेशन बिटवीन लिमिट्स 0 to x kx dx। लिमिट उसी साइड में देना है जिस साइड में x है। इंटीग्रेशन ऑफ dw क्या हो गया बच्चों? w। k जो है कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालो, ये है k इंटीग्रेशन ऑफ x dx। इस x का कुछ पावर नहीं, इसको 1 रखेंगे। लिमिट क्या है? 0 to x। ये काम किसके खिलाफ मैं करता हूं? रेस्टोरिंग फोर्स के खिलाफ। करो इंटीग्रेशन। ये बनेगा w इज इक्वल टू k x रेज टू पावर 1 प्लस 1, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 बिटवीन लिमिट्स 0 टू x। ठीक है बच्चों, ये बनेगा w इज इक्वल टू k x रेज टू पावर 2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है ना, बिटवीन लिमिट्स 0 टू x। 2 को क्या लेंगे? बाहर। ये बनेगा w इज इक्वल 1 बाई 2 k, 1 बाई 2 k ब्रैकेट में क्या रहेगा शाबाश? x स्क्वायर बिटवीन लिमिट्स 0 टू x। अब लिमिट दे दो, पहले कौन सा लिमिट देंगे? अपर लिमिट। ये बनेगा w इज इक्वल टू 1 बाई 2 k x स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। ठीक है, ये क्या निकलेगा यहां पर? w इज इक्वल टू 1 बाई 2 k x स्क्वायर निकला ना, क्योंकि x स्क्वायर माइनस 0 क्या होगा? x स्क्वायर। ये वर्क मैंने किसके खिलाफ किया? रेस्टोरिंग फोर्स के खिलाफ। लिहाजा यही वर्क इस स्प्रिंग में स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज व्हाट? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। बट ये W जो है, बट W इज इक्वल टू U इलास्टिक। But W is equal to U elastic, means elastic potential energy. Therefore, U elastic is equal to 1 by 2 kx square. This is the expression for elastic potential energy. बात समझ आई? This completes this video.